many names are there. میں شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور قوت گویائی دی اور حق کو سچ پر چلنے کے لیے جو اس نے ہمیں قدرت دی اس کے لیے کا بہت بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں فارسی ڈپارٹمنٹ کا پرشن انسٹیٹیوٹ کا پروفیسر مشرا اعظمی مصطفی عاشق صاحب کا عثمان صاحب ظاہر سی بات ہے میں آپ کے بعد ہی تو آئے گا عثمان صاحب عثمان صاحب کا پروفیسر عاشق علی صاحب کا اور ان سب حضرات کا جن کا مجھے نام تو نہیں معلوم مگر شکلیں معلوم ہیں اور یہ لگتا ہے کہ دوپہر کے وقت میں یہ لوگ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں اور کچھ سنانے کے لیے. نہیں میری 10 منٹ کی بات ہے ایسے تو 13 پیج ہیں ایک منٹ کی میں نے تو 13 منٹ لگی 10 منٹ میں بات ختم کروں گا. وہ بات شروع یوں کروں گا میں آپ کو دیکھوں گا آپ مجھے دیکھیے. اتنی بات ہے کہ یہ جو سیمینار ہو رہا ہے اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فارسی زبان و ادب انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کا ہندوستانی زبانوں پر کیا اثر ہوا اور کیا اثر قبول کیا. 700-800 سال فارسی زبان یہاں ہماری تاریخ ہماری جغرافیہ ہمارے آرٹ ہمارے کلچر سب چیزوں پر ڈپکٹ کرتی رہی اور آج کا جو موجودہ دور کا انسان ہے موجودہ دور کی جو جنریشن ہے اس کو نہیں معلوم کہ کتنے عمدہ کارنامے اس زبان میں اپنے دامن میں سمیٹ رکھے. ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ فارسی میں یا ایران میں جہاں 8ویں کلاس سے فلاسفی پڑھائی جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. ڈپارٹمنٹ باقی کو الگ رکھا. ہمارے ہاں سعودی عرب میں فلاسفی بین ہے. ہم سوال نہیں کر سکتے. مختلف جگہوں پہ ہم جاتے ہیں تو ہم علماء حضرات سے یہ کہتے ہیں پنڈتوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بات کہیں اس بات کے لیے واپسی جواب آنا چاہیے آپ کے سوال کے ساتھ. جب ہم سوال نہیں کریں گے تو نہ آپ بڑھیں گے اور آپ کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. یہ سوال کرنا جو سکھایا ہے یہ اس زبان نے سکھایا ہے کہ جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں اور آئندہ اگر ہمیں ایسے سیمینار کرنے ہیں تو اس زبان کو زندہ رکھنا ہمارے اپنے کلچر کا حصہ بھی ہے ہمارے ایگریکلچر کا حصہ بھی ہے. ہم زندہ ہیں اس لیے کہ زبان کے ساتھ ہیں. اگر ہم کہتے کچھ ہیں ہمارے بچے نہ اردو جانتے ہیں نہ فارسی جانتے ہیں نہ ہندی جانتے ہیں اور بڑی مشکل انگریزی جانتے ہیں. مگر مصیبت ہماری یہ ہے اف یو اسپیک ان انگلش یو آر اے لٹریری پرسن. اف یو نو ہندی اور پرشین اور عربک اور سنسکرت یو آر اے لٹریٹ. یہ بڑی زبردست پرابلم ہے جو ہم کو سلیکشن کمیٹی میں بھی فیس کرتے ہیں. اگر آپ اچھی طرح کنورسیشن کر سکتے ہیں انگریزی میں تو آپ بڑے قابل ہیں. اگر آپ اچھی ہندی اور فارسی اور باقی زبانیں جانتے ہیں آپ کو کچھ نہیں آتا. تو اس چیز نے ہم کو گھیر رکھا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو میں ساتھ میں اصل کا ٹاپک یہ تھا کہ امپیکٹ آف رومیز صوفیزم آف لو آن اقبال ریلیونس ان آور ٹائمس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری وہ شاعری دیوان اقبال لاہوری کی ہو کلیات اقبال کی ہو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ہو دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا ہو سب جگہ آپ دیکھیں گے تو علامہ اقبال کی پوری فکر میں جس قدر فارسی کلام اور فارسی ٹیکنیک سمائی ہوئی ہیں وہ کسی دوسرے کے کلام میں نہیں ملیں گے. مولانا رومی کو میں نے اس کو مولانا رومی کو جس کو وہ اسپرچل مینٹر کہتے ہیں ان کے کلام سے کتنی علامہ اقبال متاثر رہے اور اسی کے حساب سے فلسفہ خود ہی پورا. یہ اور بات ہے کہ مولانا رومی کو عام طور سے ہم وحدت الوجود اور نظر الشعور کے جنگل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ صوفیزم کے ایک حساب سے مخالفت میں تھے. تو کس طرح کی صوفیزم کے جس کو میں اپنی زبان میں ٹیکنیکل ٹرم میں پیسو صوفیزم کہتا ہوں. وہ پیسو صوفیزم وہ ہے کہ تم اکیلے دریا کے کنارے مندر کے کسی کونے میں مسجد میں جا کے اللہ کرو یا رام رام کرو اس دنیا سے کٹ جاؤ. اس طرح کی صوفیزم کی پریچ نہ اسلام کرتا ہے اور نہ علامہ اقبال اس کو مانتے ہیں اور مولانا رومی نے اس کی زبردست کاٹ کی ہے. اس کو علامہ اقبال اپنے ہاں دیتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال صوفی نہیں تھے ادھر کی باتیں ہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا صوفیزم نے زبردست مقابلہ. آج کل ماڈرن ٹرینڈ ہے مسلمانوں میں بھی
बहुत से तबके, बहुत से सेक्ट हो रहे हैं, पर अगर हमारा बस चले 1-2 सेक्ट हम और बना लें। बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, शियों में भी अलवी हैं, इस्माइली है, और ना जाने सुन्नियों में भी कितने हैं, और इसी तरह नॉन मुस्लिम में तो खैर फिरके बनते ही हैं, तो 4 गवर्नमेंट है ही हैं, सब लोग बराबर नहीं है। हमको ये चाहिए कि इंसानी दुनिया में ऊपर वाला एक है, जो रूहानियत हमारी है उसका मालिक एक है। हम सब अलग अलग हो सकते हैं, मगर हमारे सेंटिमेंट्स, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, व्हाटएवर वी आर हैविंग, हम और अलग। हमारे यहाँ किसी का खून पीला नहीं है, किसी का खून नीला नहीं है, हिंदू का खून जर्द नहीं है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि उनका खून सफेद हो गया, दूसरे का खून जो है वो नीले रंग का है, जब सबका आदम और हव्वा सबके हमारे माँ बाप हैं, हम नफ्से वाहिद से पैदा हुए हैं, हमें जितने इख्तलाफ हैं, ज़बानें अपनी अपनी हो सकती हैं, स्ट्रक्चर हमारा एक ही है। इस चीज़ को अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अता कुन शोर रूमी सोज खुसरू, मुझे रूमी का सोच भी चाहिए और उसके बाद जो है शोर भी चाहिए और सोच चाहिए उनको खुसरू का। अता कुन सिद्क़ इखलास सनाई, और फिर इसी तरह को दुआ कहा अल्लाह ताला से कि जब मौलाना रूमी कहते हैं मैं उस खुदा को मानता हूँ जो सबका खुदा है, सबका पालनहार है, और आप हम सब उसी के साए में हैं, तो फिर हम में ये जुदाई जो डालने वाले हैं, ये लोग इंसान नहीं हो सकते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कैद नहीं है, कोई भी आदमी हो इस दुनिया में कहीं भी किसी लोगों का जुल्म होता है, यूक्रेन में हो रहा है तो हमारा दिल तड़प रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो भाई ऐसा है कि वेस्ट वाले लोग हैं, उन्होंने हमेशा जुल्म किया, ज्यादती की है, लिहाजा हमसे कोई मतलब नहीं है। कहीं भी कोई भी मरता है, समझ लिए हमारी सांस जा रही है। इस चीज़ को लाने के लिए मौलाना रूमी ने जो कोशिश की है कि तुम अपने रीजन की वजह से, अकल की वजह से, फिलॉसफी की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से गॉड को डिफाइन नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर जो रूहानियत की ताकत दी गई है, इसी से तुम समझो कि तुमने कभी भी मस्जिद में आके, मंदिर में आके जो ही इख्तलाफ की बात की, तुम इंसान की सबसे अलग हो गए। इन्हीं चीज़ों को अल्लामा इकबाल ने ये कहा है कि खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड। इस्लाम की शुरुआत ना से होती है, हाँ से होती नहीं है। वी कांट से एवरीथिंग जस्ट, देयर इज नो इन इस्लाम। कोई भी झूठा खुदा, कोई भी गड़बड़ी करने वाला, उसका सबसे पहले इनकार करो, एक का इजहार करो। वो एक वो है जिसने सबको एक ही जैसा पैदा किया है, सबको एक ही जैसी। अगर किसी का रिज्क कोई खा गया, इसका मतलब है इसमें गॉड की बात नहीं। अल्लाह ने कहा, मौलाना रूमी और इकबाल ये कहते हैं कि रिज्क के माँ और दस्त शुमा तकसीम कर। मेरा रिज्क था, मैंने इंसानों के जरिए लोगों को तकसीम किया। अल्लाह आके आपको नहीं कहता, अब अचानक दरवाजा खटखटाया, किसी ने आपकी मदद की। आदमी की रूप में दूसरा आदमी आपकी मदद करता है, अल्लाह उसे भेजता है। और इसीलिए उसने कहा कि मैं लोगों की तलाश में हूँ कि अज़दाम उदत मलूम व इंसान मारूं, है ना। और इसी पे अल्लामा इकबाल ने कहा कि बर्तन अस गर्दूं मुकाम आग मस्त, असल तहजीब एहतराम आदमी, और आदमियत एहतराम आदमी बाखबर शो अज मुकाम आदमी। इंसान का क्या मुकाम है, उसके लिए खबरदारी आपको करना है साहब। इसीलिए वो परफेक्ट मैन की जो एग्जाम्पल देता है अल्लामा इकबाल, खुदी की एग्जाम्पल देते हैं, वो सब मौलाना रूमी से ली हुई है। और इसीलिए वो कहता है कि आदमी मामूली नहीं है, इसका हाथ अल्लाह का हाथ है। ये मर्द खुदा बहरगोर बेपनाह, मर्द खुदा कतरा बोल बेहतराम। ये मौलाना रूमी कहते हैं तुम इसे समझते क्या हो। और अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ। आप इसको मामूली ना समझे कि इसमें यदुल्लाह है, ये हाथ अल्लाह का हाथ है। और ये जब पढ़ता है किसी पे बरकत के लिए तो भी, और अगर कोई गड़बड़ी करता है इसी दुनिया में उसका हिसाब किताब होता है। मैं आगे बढ़ता हूँ और कंसेप्ट ऑफ लव की बात करते हैं अल्लामा इकबाल और मौलाना रूमी। उसमें ये कहे कि इश्क अकल हम इश्क बस थोड़े नजर बिगाना नहीं, अकल की भी बात है और सब्जेक्ट की बात है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी हैव टू अप्लाई फिलॉसफी। अगर दुनिया को समझना है तो फलसफे की मदद लेना पड़ेगी, सवाल जवाब आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका लिटरेचर जब तक आगे नहीं पढ़ सकता जब तक क्रिटिकल इवैल्यूएशन ना हो। और इसी में तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी महफिल नहीं है, गुजर जा अकल से आगे। उसमें स्टाइलिंग कॉन्शियस स्टाइलिंग की बात करता है। निकम्मापन किसी को पसंद नहीं है। निकम्मापन अलीगढ़ में हो, दिल्ली में हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी डोंट वांट टू जनरेट जॉब्स।
हम देखते हैं हम PhD करने के बाद DEd करने के बाद हमको कोई जॉब दे दे। आप कोई भी जॉब अपना ऐसा इख्तियार करिए जिसमें 10 लोगों को आप सर्विस दे सकें। इसलिए उसने कहा मौलाना रूमी ने, तो कोशिश से बेहुदा बेअस गुफ्तगी, आप जो है यूजलेस स्क्राइबिंग इज बेटर देन इनएक्शन। और अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि कमाल तर्क नहीं, आप वकील से महदूदी, कमाल तर्क है तस्वीर काफ़ी मुबीन। और इसी के हिसाब से कंसेप्ट इन डेथ की बात भी करते हैं। आजकल लोग जो है कोविड में लोग मर गए, लोग डरते हैं, इन्ना लिल्लाह पढ़े हैं, उस वक्त मरने जा रहे हैं। अरे भाई व्हेन गॉड इज कॉलिंग यू, जब आप इस दुनिया में इन्ना लिल्लाह का मतलब है हम गॉड की तरफ से आए हैं और पलट के जाने वाले हैं। वो उसने कहा बुला रहा, आप जाते नहीं है, जबरदस्त जाने वाले हैं। अरे जब उसने बुलाया चले जाओ, नहीं भी जाते तो भी जाना पड़ेगा। इसलिए परफॉर्म योर एक्शन इन ए बेटर वे। जितनी देर जिंदा है उसका शुक्र करें, और सुबह जो ही आप बेदार हों और ये अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ताला हमको जिंदा रखा है और इस लम्हों को हमको काम में लगाना है। और फिर उसके बाद जो है अल्लामा इकबाल ने जो जिंदगी की बात की है कि अपनी दुनिया आप पैदा करेंगे तुम में, यू हैव टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड बिकॉज़ यू आर अ लिविंग बीइंग। अगर आप जिंदा नहीं है, टाइम 10 मिनट हो गए, ये सब पता नहीं चलता। जहान ताज़ा की ये सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है, जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमू, ये संगो खिश से होते नहीं जहाँ पैदा। ये सब के लिए स्कॉलर्स के लिए जरूरी है कि हमारी दुनिया में बड़े बड़े मकान बनाने से, गाड़ियाँ खरीदने से आप बड़े नहीं होंगे अगर आपकी अफकार जो है वो मौजूदा दौर में लोगों के काम नहीं आ रहे हैं। Your education, your degree, your services, if they are not workable, if you are not serving human beings, and that your degree is just a piece of paper. ये हमारे यहाँ हो रहा है। जिंदगी दर जुस्तजू पोशीदास असले उदार और रूप पोशीदास। और फिर उसके बाद लास्ट में एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उसके लिए कम तवज्जो देते हैं लेडीज़ के लिए खासतौर से। मौलाना रूमी ने उनकी अपनी एक शागिर्दा थी, जिसको वो कहते हैं कि औरतें सूफी नहीं हो सकती, नाज़मा खातून नाम जो उनकी बीवी की सहेली थी, उसमें उन्होंने कहा कि आई कांट से दैट गॉड इज ही और शी, ही कैन बी बोथ। यहाँ पे भी मैन शोविनिज्म का भी चक्कर है ना कि मर्दों ने कहा कि गॉड ही से पुकारा जाए, मैं सुनने देखें अच्छा है। तो सवाल ये है कि जब हम ये कहते हैं गॉड इज ही और शी बोथ, तो मौलाना रूम कहते हैं कि तुम यू शुड एंजॉय द कंपनी ऑफ गॉड। जब आपका इस दुनिया में कोई भी ना हो और तो आप देखेंगे कोई मदद करने वाला हो और तुम उस खुदा को पुकारो जिसने तुम्हें पैदा किया है, ही विल हेल्प। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मर्दों ने उसे गोद में बैठा लिया हो, अपना नाम कर लिया हो। तो खुदा खुदा है, वो हमारी बातें सुनता है, ज़ात सदूर है। जब भी आप लोगों में बैठें, कुलू लिन्नास हुस्ना, इस तरह से तौहीद कुरान, लोगों में बैठो तो बुरी बात करें। अल फितना अशुद्धो मिनल कत्ल, जब फितने की बात करें तो इसका मतलब ये कत्ल से बेहतर है। यही चीज़ें जो हम लेके चलते हैं, जिसको अल्लामा इकबाल ने लास्ट में ये कहा कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की जब कोई चीज़ बताते हैं तो लास्ट में उन्होंने एक बात कही है जिसको मैं कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि उन्होंने कहा कि मुसलमान किसको कहते हैं, बिलीवर किसको कहते हैं, नॉट मुस्लिम, ये जिसको कलमा पढ़ लिया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। द पर्सन हु इज बिलीविंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन, दैट ही इज द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ ऑल। उसने कहा कि फितरत मुस्लिम सरापा शफकत अस्त, दर जहाँ दस्तो ज़बानश रहमत अस्त। इसकी ट्रांसलेशन है कि मुसलमान जो बिलीवर है उसकी नेचर में ये है, उसके हाथ पैर जो है वो मोहब्बत के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते, और अगर उसके हाथ और पाँव से दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचता वही आदमी उसका